पंजाब जीके ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, when did ਬਾਬਰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲੀਟਲੀ? ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਔਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ? 1525 ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1525। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ who established first ਸਿੱਖ ਰਾਜ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ, ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਏਰੀਆ? ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ? ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਲਾਹੌਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। How many members participated in SGPC when it was formed? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ SGPC 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਲਿਤਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SGPC ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 175 ਮੈਂਬਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ? ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਨਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। In which of the following districts ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ border is situated? ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਇਹ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Which victory dance is recognizable by swaying movement of head? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਡ ਐਂਡ ਹੈਂਡ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਡੀ ਡਾਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਡੀ ਡਾਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੁੱਡੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਜੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਡੰਕਾਰਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਲੁੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਿਰ ਵੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਡੀ ਡਾਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਮੇਨ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫਰੋਮ? ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 2
ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 1953 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਤੱਕ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਨਫਾਲ ਇਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਡ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ? ਆਪਣਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। The Treaty of Amritsar between East India Company and Maharaja Ranjit Singh was signed in which year? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ 1806 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਹੋਲਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ 1806 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਧੀ ਜਦੀ ਹੋਈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਉਹ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਪੜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1809 ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। What was the old name of ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ? ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਂਗੜਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤਿਰਗਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਸਥਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ old name of ਜਲੰਧਰ। Amritsar Singh Sabha was established in 1873. Which are the following reasons? ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਸ ਡਿਸੋਲਵਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ? ਕੋਈ 4 ਮਾਰਚ 1953 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। Which national highway connects Delhi with Wagah border? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ NH1 ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ NH44 ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ NH44 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਘਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? NH44। Name the Indian ruler who is said to have donated land for Golden Temple? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੈਂਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ
ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਕਿਹਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਕਬਰ। ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਫਾਲਸ ਇਨ ਵਿਚ ਅਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ? ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। Which among the following personalities was deported to Mandalay jail along with Lala Lajpat Rai? ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ is located in the dash of India, north west, north south, north east, south west. So Punjab lies in the north west of India. ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ lies in the north west of India. Name the Sikh Guru who founded Amritsar city. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। What was the ancient name of ਬਠਿੰਡਾ? ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਿਕਰਮਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵਿਕਰਮਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ समझ आए होंगे। थैंक यू। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम जीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक करके सारे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज कोर इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन आपको पता ही है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो जो इन्फ्लेशन है वो दो तरीके में हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, कोर एंड नॉन कोर इन्फ्लेशन। अब ये जो कोर इन्फ्लेशन है बेसिकली इसमें चीजें महंगी तो होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज महंगी तो होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें एनर्जी से रिलेटेड चीजें, एनर्जी रिसोर्सेज और फूड रिसोर्सेज को छोड़ के बाकी चीजें महंगी होती हैं। तो अगर यहां पे हम ऑप्शंस को देखें तो भैया इसमें जो हमारे पास ऑप्शन डी है दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है व्हाट इज द इक्वेटोरियल रीजन दैट हैज लो प्रेशर कोल्ड? तो अब देखो, अगर हम धरती की बात करें तो धरती के बहुत सारे हम देखते हैं रीजन्स आ जाते हैं। उसमें से जो इक्वेटर के पास का एरिया है, हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। और भैया ये लो प्रेशर जो बिल्ड हो रहा है ना, ठीक है, लो प्रेशर जो बिल्ड हो रहा है, हम देखते हैं कि ये भैया कोई विंड्स नहीं है, तो ट्रेड विंड आंसर नहीं होगा। ईस्टलीज अगेन विंड्स हैं, ठीक है, वेस्टलीज भी हमारे पास विंड्स हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है? डोल ड्रम्स। तो आंसर क्या होगा इसका? डोल ड्रम्स। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होस्ट लैटिट्यूड, अच्छा होस्ट लैटिट्यूड भी हमारे पास क्या है, बेसिकली ये भी एक प्रेशर बेल्ट को ही दिखाने वाले लैटिट्यूड्स हैं। यहाँ पे हम देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये इक्वेटोरियल रीजन में नहीं है। दिस इज अगर हम देखो, यू कैन लोकेट इट इन बिटवीन पोलर एंड, अगर पोलर रीजन, और दूसरा कहां पे, या ये आपके पास ट्रॉपिकल रीजन के बीच में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर हैज ओजोन लेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स अस और अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन? तो देखो, जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए आपने बस एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है, आपका क्वेश्चन 100% सोल्व हो जाएगा। जब भी एटमॉस्फेयर की लेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कीप इट इन माइंड, ये जो ट्रिक बता रहा हूं, बाय यूजिंग दिस ओनली यू कैन सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, और ये ट्रिक क्या है? द ट्रिक इज ईट मोस्ट। ट्रिक है आपके पास ईट मोस्ट, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। ठीक है, इस ट्रिक की मदद से आप भैया स्पेस से धरती के क्रस्ट तक जो जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है उसको आसानी से याद रख सकते हो। भैया ये से आपने एक्सोस्फेयर याद रखना है, ठीक है। एक्सोस्फेयर के नीचे आपको मिलेगा थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के नीचे आपको मिलेगा मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर के बाद ओजोन लेयर जो कहां पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में है, जो कहां पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में है। और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपके पास कौन सा आता है? ट्रोपोस्फेयर। तो इस ट्रिक की मदद से आसानी से ये क्वेश्चन भी सोल्व होता है। आंसर होगा सी, स्ट्रेटोस्फेयर। गॉट इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय
फूट डालो शासन करो नीति, ये किसने अडॉप्ट करी थी? तो भैया यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। लॉर्ड कर्जन, भैया देखते ही दिमाग में क्या आता है, बंगाल का विभाजन 1905। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, तो इन्होंने कह तो दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से बंगाल एक बहुत बड़ा रीजन है और इसको एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, इसका विभाजन या बंटवारा कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्रिटिक्स कहते हैं कि भैया ये जो बंटवारा हुआ था ये हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी के डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से हुआ था, तो भैया इसको भी फूट डालो शासन करो नीति में माना जाता है। लॉर्ड विजली, लॉर्ड मिंटो का भी भैया इसमें नाम आता है। तो ऑप्शन डी जो है, बोथ ए एंड सी, ये सही जवाब यहाँ पे रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो क्वेश्चन मिलता है हरिजन सेवक संघ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो भैया ये जो हरिजन सेवक संघ है, हरिजन एक मैगजीन भी आती थी जो महात्मा गांधी की थी, यहां से भी आपको हिंट मिल सकता था। महात्मा गांधी ने एक संघ बनाया था हरिजन सेवक संघ, जो हम देखते हैं हरिजन समाज, या फिर हम देखते हैं कि जो हम देखते हैं डिप्राइव्ड सोसाइटी थी, डिप्राइव्ड क्लास थी उस वक्त की, ठीक है, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने जो ये संघ बनाया है, ठीक है, किसने बनाया? महात्मा गांधी। तो आंसर डेफिनेटली क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है at which Congress session did the Dada Bhai Naroji announces that Swaraj was the goal of India's political efforts? अब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, तो भैया 1886 का सेशन देख के आपको याद आ सकता है कि भैया ये सेशन जो था ना, ये दादा भाई नरोजी ने ही क्या करा था, प्रिजाइड करा था। तो आपको क्या हो सकता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक और सेशन है, ये भी दादा भाई नरोजी का प्रिजाइड करा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बंगाल का विभाजन होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट चलता है, स्वराज की बातें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है। तो याद रखना 1906 का जो सेशन था कांग्रेस की स्प्लिट से पहले, सूरत स्प्लिट से पहले, उसमें हम देखते हैं स्वराज की बात होती है। तो डी विल बी द राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विच कम टू इंडिया इन द मार्च 1946 डिड नॉट हैव एज इट्स मेंबर। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन 4 है, मेंबर कितने से थे? सिर्फ इसके 3 ही मेंबर थे। अब देखते हैं कौन नहीं था। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस बिल्कुल मेंबर थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स बिल्कुल मेंबर थे, एबी अलेक्जेंडर बिल्कुल मेंबर थे, कैंपबेल जॉनसन वाज नॉट द मेंबर। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? डी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान का रखवाला कौन है? इधर भैया आंसर है द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। तो विदाउट एनीथिंग यहाँ पे सीधा सीधा आप आंसर कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन? तो इसका एनके सिंह जो है सही जवाब है। आगे चलते हैं, तो कहता है पावर टू क्रेव आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन के पहले हिस्से में पढ़ते हो। तो भैया ये पावर, अब यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस को देख के, ठीक है, यहाँ पे आपको इनसे कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो भैया जो प्रेसिडेंट है, पहले देखो ये तो पार्लियामेंट ही बनाएगा, छोड़ो इसको, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिला के क्या बनती है? पार्लियामेंट, ठीक है। तो भैया ये काम कौन करेगा? पार्लियामेंट। तो आंसर बिना डर के और बिना झिझक के हम क्या दे सकते हैं? ए दे सकते हैं। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बेसिक स्ट्रक्चर theory of constitution of India implies that certain feature of the constitution are so essential to it that they cannot be abrogated। abrogated का मतलब होता है रिमूव करना। तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एब्राइड और टेकन अवे, दे कैन बी टेकन अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। उसमें से एग्जांपल है, हम देखते हैं कि इमरजेंसी भी हो सकता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, भैया अमेंड हो सकता है। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड पहले भी हो चुका है। तो बिना किसी झिझक के आप ए मार्क कर सकते हो और ए सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट ऑफ द रिएक्टिवेशन ऑफ द इमरजेंसी पीरियड ऑफ बाय द पार्लियामेंट? ऑफ भैया 1 महीना आंसर होगा इसका, बी यहाँ पे ऑप्शन है 1 महीना, तो ये सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? तो भैया फंडामेंटल राइट में था राइट ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये हट गया था और लीगल राइट बन गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अप्रैल 5 इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल मैरीटाइम डे। इट वाज ऑन दिस डे in 1999 that first Indian merchant ship sailed from Mumbai to London। बिना देखे देखो यार, लंदन इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं आगे। तो भैया नेम द सीनियर IFS ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो भैया इसका आंसर है विनय मोहन
क्वात्रा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया बेंगलुरु बेस्ड इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट ऑन अप्रैल 1। तो भैया ये बड़ा ही फेमस एक नाम है इंडियन मिथोलॉजी का, जिसको शकुंतला है, शकुंतला के नाम पे इसका नाम था। चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियाज largest single axis solar tracker system has been commissioned by the Tata Power Renewable Energy Limited in which place? तो ये धुलेरा में इन्होंने करा है। ठीक है, कहां पे करा है? धुलेरा में इन्होंने ये करा है। ठीक है, what is the name of scheme that proposes to recruit young people for the Indian Army for 3 years short terms? तो अग्निवीर और अग्निपथ काफी हमारे अब देखते हैं कि कंट्रोवर्सी न्यूज में रहता है, तो बिना देखे आंसर क्या कर सकते हैं आप? बी अग्निपथ इसका सही जवाब है। अच्छा, आगे चलते हैं। नेम द नोटेड हिंदी पोइट एंड लिटरेचर who has been honored with the सरस्वती सम्मान 2021। तो भैया ये किसको मिला है? रामदर्श मिश्रा को, प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा को मिला है 21 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 9th एडिशन ऑफ द इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 2022 was held from 25 मार्च to 6 अप्रैल इन विच एरिया? याद रखना, जब भी देखो, एक आपको यहाँ पे भी एक और ट्रिक बताता हूं, जब भी स्पेशल मिलिट्री की, आर्मी की, खासकर आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की कोई ऑपरेशन, सॉरी कोई एक्सरसाइज हो, तो याद रखना कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि बकलोहो चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में ही वो होगी। तो अगर आपको यहाँ पे अगर ऑप्शन मिले तो एलिमिनेट करके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो देखते हैं। इन विच ईयर एडम स्मिथ, ठीक है, आल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, वर्क एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड सेंसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिश? तो ये हम देखते हैं 1776 में ये इनका काम था, पब्लिश होता है काम इनका। The transformation of goods from the primary sector into economic goods is known as, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोडक्शन कहते हैं। चलो आगे। Which of the following are function of CBI? Coordinating the activities of the anti corruption agency, बिल्कुल है। Maintaining crime statistics, ये भी करती है CBI। अच्छा, डिसिमेंटिंग क्रिमिनल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ये भी करती है। तो आंसर रहेगा डेफिनेटली डी, और डी यहाँ पे सही जवाब रहेगा। अच्छा, हु डिटरमाइंस द रेमुनेशंस ऑफ एडवोकेट जनरल? तो जैसे अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर में, वैसे ही स्टेट्स के पास क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता है। देखो, अब इसकी जो तनख्वाहें हैं ये या भत्ते हैं, ये डिसाइड कौन करेगा? डेफिनेटली गवर्नर ही करेगा। तो गवर्नर विल बी द राइट आंसर हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग सीरियल, मिल्क, फ्रूट, पल्सेस, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वर्ब कमोडिटीज इन द होलसेल प्राइस? तो देखो पहले ही आंसर आ गया, 1 2 3 एंड 4 विल बी द राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे। Who is the author of Revolutionaries, the other story of how India won its freedom? तो भैया ये संजीव सन्याल की किताब है। ठीक है, किसका? संजीव सन्याल का काम है ये। ठीक है, अच्छा आगे। इन विच ईयर सरदार पटेल लेड द बोरसद सत्याग्रह? तो सरदार पटेल ने ये जो टैक्स की इंक्रीज करने, टैक्स जो इंक्रीज करता अंग्रेज सरकार ने, उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया था गुजरात में साल 1923 में। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Who started बॉम्बे क्रॉनिकल? तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है सर फिरोज शाह मेहता की चलाई हुई, हम देखते हैं कि मैगजीन है। मतलब आगे हम देखते हैं, which state topped the employee provident fund organization coverage percent across the country? तो दिल्ली ने टॉप करा था इसको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। which bank has conducted India's first floating financial literacy camp? तो भैया ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। ठीक है, चलते हैं। तो भैया ये थे हमारे आज के जीके क्वेश्चन। आई होप सिर्फ आपने यहाँ पे आंसर्स का ही पता नहीं लगाया होगा, आंसर्स के साथ आपको कुछ नई चीजें भी पता चली होंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करा जाता है। और इसी के साथ आपको तैयारी करने के लिए ऐसे ही हम मदद करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो तक के लिए अलविदा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते ज्ञानम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आता है, जिसके कि वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है? विच ऑफ द
following device is used for video game, flight simulator, training simulator and controlling in industrial robots? अब आपको यहाँ भी ये बताना है कि मतलब मैनेजमेंट का काम जो है ये किसके थ्रू किया जाता है, चाहे आपके पास फ्लाइट स्टिमुलेटर हो या ट्रेनिंग सिमुलेटर हो या फिर आपके पास इंडस्ट्रियल रोबोट हो, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है? माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है या फिर कीबोर्ड है? अगर मैं बात करता हूं तो इससे हमें हमेशा ही ना आइडिया देना है कि वीडियो गेम की अगर बात करी जाए तो वीडियो गेम्स में आपके पास एक बड़ी कॉमन चीज होती है माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक या फिर कीबोर्ड। तो अक्सर हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कीबोर्ड जो है इसका आंसर नहीं होगा, जॉयस्टिक। पर्टिकुलरली आपको याद होगा कि जॉयस्टिक के थ्रू आप लोग इनपुट देने का यहाँ पे काम करते थे। जॉयस्टिक जिसके रिमोट होते हैं उसको बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? जॉयस्टिक इसका आंसर जो है बनेगा। आंसर क्या बनेगा? जॉयस्टिक। तो होपफुली बात आप लोगों को यहाँ पे ये क्लियर है, इसका आंसर क्या बनेगा? जॉयस्टिक पर्टिकुलर इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री फंडेड द ARPANET प्रोजेक्ट? अब ARPANET क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए व्हाट इज ARPANET। ARPANEट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसे कई बार आरपा करके भी पूछा जाता है, ARPA आरपा करके पूछा जाता है। एक्चुअल में ये आरपा ही था, बाद में इसके साथ में NET जोड़ दिया गया, फिर इसे ARPANET बोल दिया गया। अब ये यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी थी, ठीक है, नाम ही आ गया कि यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी थी जिसने इंटरनेट बनाया है। तो कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET। तो आप बता सकते हैं कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और ये किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। तो बी ऑप्शन इसका आंसर जो है बन जाएगा। क्या आंसर बनेगा? बी फॉर बॉम्बे, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? अब मेरे को लगता है जीमेल में अकाउंट सभी बच्चों का होगा, तो यही तो पूछा गया है कि जो ईमेल है, तो जीमेल जो है आप लोगों में आप कितना डेटा यहाँ पे फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हैं? 10 MB, 20 MB, 25 MB या फिर 40 MB? तो अगर मैं बात करता हूँ, इस बात का आंसर सभी को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हर बच्चे का जीमेल अकाउंट है। तो इसका आंसर जो है वो है 25 MB। 25 MB तक की फाइलों को आप अटैच करके किसी को भी सेंड यहाँ पे कर सकते हैं। 25 MB तक की फाइलों को अटैच करके सेंड किया जा सकता है। तो आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करें। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन? अभी देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब साफ तौर पे यहाँ पे बोला कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल इनपुट है, इमेज स्कैनर इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है। अब साउंड कार्ड तो नहीं है, ये तो आपके पास कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आंसर इज साउंड कार्ड। साउंड कार्ड जो है इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेटा इन कॉम्पैक्ट डिस्क कैन बी स्टोर अप टू? कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब है सीडी। सीडी की अगर आपके बात यहाँ पे पूछी गई है कि सीडी में आप लोग कितना डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो हम लोग मानते हैं 550 MB, 1000 MB, 750 MB या फिर आपके पास 1500 MB। अगर मैं बात करता हूँ तो 750 MB तक, वैसे अप्रोक्स कई बार आप लोग यहाँ पे 700 MB भी आप लोग यहाँ पे आंसर कर देते हैं। तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास रहेगा, अगर आपके पास मैक्सिमम इस तरीके से आएगा तो 750 MB। अदरवाइज वर्ड अप्रोक्सीमेट करके लिखा हुआ आता है, तो यू गाइज हैव टू आंसर अप्रोक्सीमेट 700 MB भी आप आंसर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंट्रोल प्लस क्यू यूज्ड इन MS वर्ड? अगर कंट्रोल प्लस क्यू की शॉर्टकट की मैं बात करता हूं तो इसका MS वर्ड में क्या यूजेज है?
टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जितने भी फॉर्मेटिंग लगी है पैराग्राफ में उसे रिमूव कर दिया जाए, या टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल के लिए तो ओ होता है, ये डिलीट करना है तो डिलीट तो सिलेक्टेड के लिए आपके पास डेल का होता है, ठीक है ना। और टू स्पेल चेक तो उसके लिए तो आप 7 होता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसका आंसर जो बना है वो ए ऑप्शन बना है, टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ में जितने भी फॉर्मेटिंग हमने कर रखी है वो सारा का सारा क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा, सारा का सारा क्या कर देगा, उसे रिमूव कर देगा एक ही बारी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट डू वी कॉल a malicious program that is appended to an application and it is triggered मतलब time के accordingly by a specific event such as logical condition or a specific data on date and time। अब यहां पे एक चीज समझिए, ट्रिगर वर्ड जो है कुछ एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। देखो अगर टर्मिनोलॉजी की मैं बात करता हूं तो ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि मैं अगर यहां से ट्रिगर दबाऊं और मैंने वहां पे कोई रोबोट रखा है तो वो काम करना स्टार्ट कर दिया, मैंने ट्रिगर मैंने कर दिया, है ना। तो यहाँ पे एक बात लिखी है डेट और टाइम, मलिशियस की बात है। मलिशियस का नाम से पहले ही पता चल जाता है कि कुछ ये खतरनाक बात हो रही है, वॉर्म है, एडवेयर है, लॉजिकल वॉर्म है या स्टील्थ वायरस है। अब एक बात तो समझ में है कि है तो इन्हीं में से आंसर। अब जो यहाँ पे बात हुई है डेट एंड टाइम की, इसका मतलब है लॉजिकल वॉर्म जो होता है वो एक ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के, जैसे मान लो कि मैं किसी एक कंपनी में काम करता था, मैंने वो कंपनी छोड़ दी। अब मैं चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं उनका कुछ नुकसान करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, एक कोड ना उसके ऊपर लिख के छोड़ दिया। मैंने लिखा था कि मेरे जाने के ठीक 15 दिन बाद ये कोड एक्टिवेट हो जाएगा और उसको क्या कर देगा, फाइल को आपके पास डीएक्टिवेट कर देगा या उनकी सर्विसेज को रोक देगा। तो मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद उसने क्या किया, आपके सिस्टम को जो भी था हर्ट किया। तो इसका आंसर क्या बनेगा फिर, लॉजिकल वॉर्म। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये क्या करेगा, लॉजिकल कंडीशन जो भी आपने लगा रखी थी उसको क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, एक्टिवेट कर देगा और आपके सिस्टम को हार्म कर देगा। जो भी मतलब आप करना चाहते हैं, हो जरूरी नहीं हार्म करना, चुरा भी सकता है, बट एवर जिस तरीके का हमने यहां पे किया होगा। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, रोम, फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर ऑफिस लाइव। ऑफिस लाइव जैसे तो कोई चीज होती नहीं है। फ्लैश ड्राइव की अगर बात करें वो तो स्टोरेज है, तो रोम फास्टेस्ट नहीं है, तो फास्टेस्ट यहाँ पे क्या आएगा, कैश मेमोरी। फास्टेस्ट क्या आएगा आपके पास, कैश मेमोरी यहाँ पे फास्टेस्ट आएगा। तो आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। तो होपफुली ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा, डैश प्रोग्राम कैन हार्मफुल टू कंप्यूटर ऑपरेशन, सी लैंग्वेज, फोर्ट्रन, वायरस या फिर नन। अब मेरे को लगता है ये तो एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है। सी तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रन भी एक लैंग्वेज है, वायरस ही है जो हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, डंप करता है या फिर हार्म करता है। तो आंसर इज आपके पास सी ऑप्शन, वायरस। ठीक है, आगे देखते हैं। अ डैश इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बायोमेट्रिक्स। इनमें से कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है। रेटिना स्कैन, रेटिना आंखों के अंदर जो पुतली होती है उसको बोला जाता है। आयरिश आंखों को ही बोला जाता है, इसी का ही साइंटिफिक नेम होता है। फेस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन मतलब मेरा पूरा फेस, और ऑल आर फ्रॉम ऑफ बायोमेट्रिक। हाँ, ये तो सारे के सारे यही हैं, बायोमेट्रिक ही हैं, इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं जो ना हो। तो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो यहां तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आता है, तो आज फिर से मैं आशीष आपके साथ यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और इस मॉक टेस्ट में हम लोग चेक करेंगे कि रीजनिंग को आपने कैसे सॉल्व यहाँ पे करना है। तो चलिए क्लास, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, देखेंगे इसमें, अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स सेकेंड। हमें ये बताना है कि सेकंड प्लेस पे कौन सा आएगा, और वर्ड्स हैं सारे के सारे ही है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहले आप लोग चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अगर फर्स्ट वर्ड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं BUTTERFLY, बटरफ्लाई। सेकंड है आपके पास बटलर। थर्ड है आपके पास, और फोर्थ है आपके पास बटर।
लीजिए, अगर आपके पास ये 4 वर्ड हैं, इसमें आपको ये बताना है कि आपके पास 4th प्लेस पे कौन सा आएगा। तो वो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें सेकंड प्लेस यहाँ पे चेक करना, तो सबसे पहले एक चीज़ चेक करिए कि फर्स्ट प्लेस पे कौन सा आएगा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट अगर आपको पता चल जाएगा तो सेकंड भी पता चल जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ तो सभी में BUT 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 इतना तो कॉमन है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ BUT, इतना तो कॉमन है, BUT 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 इतना कॉमन है, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ, आगे देखेंगे आप लोग, आप डबल टी है तो टी की पोजीशन होती है 20, टी की वैल्यू जो होती है 20 होती है, एल की वैल्यू होती है 12। आगे अगर मैं बात करता हूँ, सी की वैल्यू होती है 3 और टी की वैल्यू होती है 20। देखो, तो सबसे पहले एक बात तो कंफर्म हो गई कि 3 नंबर 1 पे आएगा और 20 है, ये तो नहीं आएंगे। अब सेकंड नंबर पे आपके पास आएगा बटलर। तो आपके पास फर्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ तो पहले नंबर पे जो आपके पास अल्फ़ाबेट आने वाला है वो है ये BUTCHER, और सेकंड नंबर पे आपके पास वर्ड जो आएगा बटलर है। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई RF, तो यहाँ पे थर्ड पे आएगा आपके पास बटर, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो हमसे तो यही पूछा था कि सेकंड प्लेस पे बता दो, तो दिस इज योर सेकंड प्लेस। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है जी। सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी आपके पास इसी तरीके का है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, फिर से यही पूछा है, कम्स ऑन द सेकंड प्लेस। तो सेकंड प्लेस में हमें यहाँ फिर से बताना है। तो अगर मैं बात करता हूँ, एक बार लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी से आप लोग समझ लें, LEPROSY, ठीक है जी, सेकंड। और फोर्थ जो है लैंग्वेज। चलिए, अब आगे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सेकंड प्लेस बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं LE। अब देखो LA का मतलब है आपके पास नंबर 1, तो यहाँ पे तो नंबर 1 पे आ जाएगा। अब आगे अगर मैं बात करता हूँ, LE है, इससे पता नहीं चल पाएगा क्योंकि सभी में कॉमन अल्फ़ाबेट है। तो इनसे तो हमें कुछ कंफर्म नहीं ना होगा, हमें इससे आगे के चेक करने पड़ेंगे। तो P की पोजीशन बेटा होती है 16, S की होती है बेटा 19, S की होती है 19। अब बेटा पता है आपको कि सबसे पहले 16 ही आ जाएगा, तो आपके पास सेकंड प्लेस पे कौन आ जाएगा, A ऑप्शन। सेकंड प्लेस पे क्या आ जाएगा, A ऑप्शन। तो होपफुली ये बात हमें यहाँ से डायरेक्ट क्लियर है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं A ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या है। आपके पास एक वर्ड लिखा गया है, ये तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EFGHIJK, और इसका कोड क्या निकालना है, VUTSRQP, और इसका कोड निकालना किसका है आपके पास, ZERC, इसका कोड निकालेंगे। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए ये लेटर का अपोजिट सम नहीं बन रहा है, कुछ 5 है और ये 22 है, 27 बन रहा है, 7 है और 20 है, 27 बन रहा है, 10 है और 17 है, 27 बन रहा है, 11 है और 16 है, 27 बन रहा है। मतलब हर एक लेटर का सम जो है 27 के बराबर बन रहा है। तो 1 है 26 है और 1, 5 है और 22, 18 है और 9, 3 है और 24। अगर 24 की मैं बात करता हूँ, देखिए 3 है आपके पास, सी ही है 3 और 24 मतलब x, तो ये आंसर आ गया AVIX। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही कि लेटर का अपोजिट सम 27 है। लेटर्स अपोजिट सम 27, लेटर का अपोजिट सम जो है वो कितने के बराबर है, 27 के बराबर है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सीरीज से लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, 6 है, 11 है, 21, 36 एंड 56। देन नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में प्लस ऑफ 5, इन दोनों के बीच में प्लस ऑफ 10, आगे प्लस ऑफ 15, आगे प्लस ऑफ 20। तो एक सीरीज हमें यहाँ पे बिल्डअप होती हुई दिख रही है, 5, 10, 15, 20, 25, आगे कितना होगा, प्लस ऑफ 25। अगर 56 में 25 ऐड कर देंगे तो 81 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा,
दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन आपका बेटा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फाइंड द मिसिंग नंबर आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो मिसिंग नंबर की अगर मैं बात करता हूँ 15, 12, 81, 20, 16, 144, 14, 10 और क्वेश्चन मार्क है ना। देखिए बेटा, तो सबसे पहले 15 का स्क्वायर माइनस ऑफ 12 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो 81 आ जाएगा। कैसे? 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो आपके पास 81 यहाँ पे बच रहा है। आगे चेक कर सकते हैं आप लोग 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, 20 का स्क्वायर माइनस ऑफ 16 का स्क्वायर, तो आपके पास फिर से क्या बनेगा 144। आगे किसका है? तो इसी बेसिस पे 14 का स्क्वायर माइनस ऑफ 110 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और यहाँ पे 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 96, यहाँ पे कितना आ जाएगा 96। तो सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा 96, सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा 96। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है। ये जो है आपके पास एनोलॉजी से लिया गया है और इसमें रिलेशनशिप हमें बिल्डअप करना है पिछले का अगले के साथ। प्रीमेबल, मिडेबल, स्नो, आइस, थ्रोन, रोज, इवेल्युएशन, रिवोल्यूशन, डायनासोर एंड ड्रैगन। अगर मैं बात करता हूँ प्रीएम्बल जो है वो आपके पास इसमें किसमें मिलता है? डायनासोर, और यहाँ पे ड्रैगन। लो जी, अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, इसके साथ यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है, तो आंसर क्या बनेगा आपके पास? डी ऑप्शन। क्यों? अगर मैं प्रीएम्बल की बात करता हूँ तो उसमें डायनासोर की बात होती है और मिडेबल की बात करता हूँ तो उसमें ड्रैगन की बात होती है, तो इसलिए इसके अप्रोप्रिएट बिल्कुल यही दो वर्ड बन रहे थे, तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। डन है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है? 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन सर्टेन वे, सो फ्रॉम द ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंगिंग टू द ग्रुप। हमारे पास इसमें से कौन सा जो है वो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 1 1 1। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल हो जाएगा 2 2 2 2 2 2, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 4 4 4 4 और यहाँ पे 4 4 4। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 4 8 1 4 8। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरे को एक बात समझ में आई कि इन तीनों में एक यूनिफॉर्मिटी आई, इन तीनों में एक यूनिफॉर्मिटी है कि अगर 1 से स्टार्ट हुए तो 1 1 है, 2 से स्टार्ट हुए तो 2 2 है, 4 से स्टार्ट हुए तो 4 4 है, पर 1 4 8 1 4 8 एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो आंसर इज डी ऑप्शन। आंसर इज डी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से लिया गया है। अ रैट रन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ठीक है। एक रैट जो है 20 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। देन आगे क्या है? देन टर्न राइट एंड रन 10 मीटर, राइट लिया है यहाँ से 10 मीटर, ठीक है। एंड टर्न राइट, ठीक है। अब यहाँ से फिर से राइट लिया है और यहाँ पे कितना है 9 मीटर। देन अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5, लेफ्ट ले लो 5 चल जाओ, ठीक है। फिर आगे क्या है? अगेन टर्न लेफ्ट, यहाँ से अगेन लेफ्ट ले लो और कितना है आपके पास? रन 12, अगर 12 है तो यहाँ तक हो जाएगा। एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड गो 6 मीटर, 6 लीजिए यहाँ पे। अब पूछा है नाउ इन विच डायरेक्शन द रैट इज आर फेसिंग। नाउ का मतलब है अब कौन सी डायरेक्शन में रैट जो है, चूहा जो है वो फेस कर रहा है। तो अब जो है ऊपर कौन सी डायरेक्शन है आप लोग जानते हैं, ऊपर जो है आपके पास डायरेक्शन है वो है नॉर्थन साइड। ऊपर जो आपके पास डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थन साइड, ठीक है। तो आंसर इज नॉर्थ। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। m-n मतलब ये एक आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सारे के सारे mm है, nn है, मतलब सारे के सारे लेफ्ट टू राइट है। तो माइनस का मीनिंग बेटा यहाँ पे क्या हुआ? माइनस मीनिंग है आपके पास हस्बैंड, यहीं पे मार्क कर लेते हैं। और
प्लस का मीनिंग क्या हुआ आपके पास डॉटर, और आपके पास मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या हुआ मदर, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या हुआ मदर। अब आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डेफिनेटली इंडिकेट पी इज द सन ऑफ जेड। मतलब पी को क्या बनाना है आप लोगों ने, सन। पी को क्या बनाना है, सन बनाना है किसका, जेड का। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी रिलेशनशिप सारे के सारे लेफ्ट टू राइट हो और वो बंदा आखिर में हो तो उसका कभी जेंडर हमें पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले तो अगर पी आखिर में है तो ये तो यहीं से ही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इसका जेंडर हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मीनिंग आपके पास क्या है, मदर। तो ये तो मदर बनेगा ना, ये तो सन बनना चाहिए था। वैसे फेमिनिन जेंडर आ गया तो वो तो चाहिए ही नहीं था, कैंसिल। आगे फिर से मल्टीप्लाई आएगा तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो बिना करे भी आप लोग यहाँ पे से काट सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है। इन अ क्यू A is 18 from the front while V is 16 from the back। मतलब एक लाइन है जिसमें A बंदा है और B बंदा है। A बंदा है 18 from the front, 18 from the front, एंड B बंदा है आपके पास 16 from the back। देन आगे क्या है, C is 25th from the front। अब C भी है आपके पास यहाँ पे खड़ा हुआ, लो जी बोला C बंदा यहाँ पे और खड़ा हुआ है, और 25th from the front, 25th from the front। ठीक है जी। देन आगे आपके पास क्या है, फ्रंट 25th फ्रॉम द फ्रंट एंड एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन ए एंड बी, और एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ क्यू। इस पूरी की पूरी लाइन में टोटल कितने बच्चे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर टोटल 18 है और यहाँ पे 25 है तो बीच में कितने बच्चे हुए, 6। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करता हूँ बीच में कितने हुए, 6। तो बेटा अगर टोटल आपसे पूछा है तो 25 यहाँ तक है, 6 बीच में है, 16 हैं। इन सभी को ऐड कर देते हैं, बस आंसर आ जाएगा 25, 6 और 16। ठीक है, 25 और अगर 6 की बात करता हूँ 31, 31 और 10 41, 41 और 6 47। डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया 47, डायरेक्ट आंसर आ गया 47। क्योंकि ए को तो काउंट नहीं करना, क्योंकि ए तो जो है वो अगर फ्रंट से है तो 25 भी, सी भी फ्रंट से ही था, तो मतलब सी के अंदर ही ए काउंट हो गया था। ठीक है ना, तो हमें पता चल गया। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 47। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन देखें क्या है। इफ February 1st 2008 इज वेंसडे। देखिए 1 फरवरी 1 फरवरी 2008 को अगर आपके पास यहाँ पे वेंसडे है तो आपसे पूछा गया है कि 3 मार्च को क्या आएगा। तो फरवरी से सीधा मार्च ही जाना है, 2008 जाना है। तो अगर पहला जो था, पहली तारीख को वेंसडे था, तो आगे सीधा चल जाइए। तो इसमें एक कितने ऐड करेंगे, 7, मतलब 8 को आगे फिर से क्या आएगा, वेंसडे। फिर 7 और ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 15 को वेंसडे। 15 में 7 और ऐड कर दीजिए, 22 को वेंसडे। 22 के साथ 29 को भी क्या आएगा, वेंसडे। अब 29 को अगर वेंसडे था, क्योंकि यहाँ पे ना 2008 था, तो 2008 जो था वो अपने आप में क्या होता है, एक लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। 28 की बजाय 29 दिन यहाँ पे रहेंगे। तो हमें जाना कहाँ तक है, 3 मार्च तक जाना है। तो 29 के बाद 1, 2 और 3, वेंसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा। डन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, विच नंबर बिलोंग टू ऑल द फिगर। तो सभी एक नंबर का कॉमन यहाँ पे आना चाहिए था। तो अगर मैं देख रहा हूँ ये शेप और ट्रायंगल तो के साथ में तो है, पर इस शेप का आपके पास स्क्वायर के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तो साफ तौर पे अगर जुड़ी नहीं है तो हम बता नहीं पाएंगे। तो सीधा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज है, कि कोई भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, ये कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आपके पास क्या है, m मीन्स ग्रेटर देन। m का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन। n मीन्स इक्वल टू। o मीन्स नॉट लेस देन। अगर कोई वैल्यू लेस देन नहीं है तो वो क्या होगी, ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है।
आगे है P मीन्स लेस देन, और आगे है Q मीन्स नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू नहीं है, और आखिर में है R मीन्स नॉट ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर नहीं तो लेस देन आएगा। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं O का मीनिंग क्या है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है T, ठीक है ना, और TR का मीनिंग क्या है आपके पास, लेस, TR का मीनिंग यहां से आप लोग देख सकते हैं लेस, U, ठीक है, एंड आगे है TR का फिर से मीनिंग क्या है, लेस V, ठीक है। देन आगे आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसका मीनिंग क्या है, तो पहले से कंबाइन करें तो S ग्रेटर इक्वल टू T, और यहाँ पे T लेस U, और यहाँ पे अगर मैं जोड़ दूं तो कुछ इस तरीके से अगर मैं जोड़ भी सकता हूँ। चलिए, तो मैंने स्टेटमेंट को जोड़ लिया। अब यहाँ पे पूछा है बट इज ट्रू अबाउट S, मतलब इसके कंक्लूजन क्या है, S एंड UV, और आपके पास U एंड V। अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को ना कुछ क्लैरिटी से यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, ये तो मैंने चलो बना लिया जैसे इसने कहा, पर यहाँ पे बनाना क्या है, चेक क्या करना है, वो कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो इस वजह से मैं आंसर क्या दे दूंगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। भैया हम तो यहाँ पे बता ही नहीं पाएंगे कि क्या है, ठीक है ना, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास सिलोजिज्म से है। इसमें देखेंगे क्या है। सबसे पहला है सम डॉग आर बैग, कुछ डॉग क्या है आपके पास, बैग है। सम डॉग आर बैग एंड आपके पास नो बैग इज लोइन, पूरे के पूरे बैग जो है वो लोइन नहीं है। एंड ऑल रूम आर लोइन, ऑल रूम, ठीक है। आगे है सम रूम आर बैग, सम रूम ये है बैग, ये कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला तो गलत है। अगला क्या है, सम डॉग आर लोइन, सम डॉग हैं जो कि लोइन है, ये भी गलत है। अगला क्या है, ऑल रूम आर डॉग, ऑल रूम आर डॉग, ये भी गलत है, कोई रिलेशन नहीं है। नो डॉग इज रूम, पूरे के पूरे डॉग जो है रूम नहीं है, ये भी गलत है। जब यहाँ पे कोई भी सही नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, नन फॉलोज। आइदर तो हो सकता था पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इज नन फॉलोज, यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, इन अ गार्डन देयर आर 10 रोज एंड 12 कॉलम। अच्छा, एक गार्डन है जिसमें कि 10 रो और 12 कॉलम है। मैंगो ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्री is 2 meter and the distance of 1 meter is left from all the sided। अच्छा, मतलब ये हुआ, इस तरीके का कुछ ना कुछ एक गार्डन है जिसमें यहाँ पे सारी जगह पे एक एक सेंटीमीटर इन्होंने छोड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है यहाँ पे छोड़ा हुआ है एक एक सेंटीमीटर, ये है ना। और बाकी जो है आपके पास 10 रो और 12 कॉलम, 10 रो और 12 कॉलम यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। और हर एक के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 2-2 का है। अगर यहाँ पे 10 रो हैं इस तरीके से 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो 12 कॉलम भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप समझ लीजिए। और हर एक के बीच में 2-2 का गैप है। तो आपसे पूछा है कि द लेंथ ऑफ द गार्डन इज, लेंथ बतानी है गार्डन की। तो अगर हर एक के बीच में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 10 रो थी, तो 10 रो थी, देखो 10 रो है ना, ये 10 1 2 यूं करके 10 रो हैं। तो हर एक के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 2। तो 10 × 2 कितना बन गया, 20 मीटर। 10 × 2 कितना बन गया, 20 मीटर। अब लेंथ तो बतानी है, तो 1 मीटर यहाँ से आएगा, 1 मीटर यहाँ से आएगा, प्लस ऑफ 2 मीटर। तो आपके पास टोटल आंसर क्या आएगा, 22 मीटर आपके पास यहाँ पे टोटल लेंथ होगी। 22 मीटर आपके पास यहाँ पे क्या है, टोटल लेंथ होगी, ठीक है ना। तो होपफुली बात आपको क्लियर है कि टोटल लेंथ कितनी है, 22 मीटर आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। तो आइए जी मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं जी फर्स्ट स्टेटमेंट से। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 44, यानी 3 नंबर्स का एवरेज जो है वो मेरे पास गिवन है, दैट इज 44। यानी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 3 नंबर्स का सम कैलकुलेट कर सकता हूँ, 44 3 टाइम्स करके। नेक्स्ट केस में कह रहा है जी रेशो ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर।
यानी ये एज्यूम कर लेते हैं जी मेरे पास 3 नंबर्स हैं, ये मान लेते हैं जी मेरे पास 3 नंबर्स हैं। स्टेटमेंट में आपके पास मेंशन है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का जो रेशो है वो 8:15 है। तो मान लेता हूं जी ये 8 है और ये 15 है। While the sum of the smallest and second smallest number is 72, यानी स्मॉलेस्ट का और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर का जो सम है दैट विल बी 72। तो मान लेते हैं जी अगर मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर की कोई भी रेशो उसने नहीं दी है तो मैं सेकंड नंबर को एज्यूम कर लेता हूँ कि सम में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ जी ये 8 टाइम्स है 8x है, तो मैं कह सकता हूँ सेकंड नंबर जो रहेगा वो 72 माइनस 8x कंसीडर होगा, 72 माइनस 8x रहेगा। यानी सेकेंड नंबर की अगर रेशियो नहीं दी है तो इस तरह से उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। अब लास्ट में उसने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी फर्स्ट और सेकेंड नंबर का मुझे डिफरेंस निकालना है कितना है। तो चलिए अगर तीनों वैल्यूज जो है वो बन चुकी हैं तो मैं इक्वेट कर सकता हूं जिनके सम से। अगर एवरेज मेरे पास 44 है तो 44 को 3 टाइम्स करके मैं इनका सम निकाल सकता हूं। तो इक्वेशन बेसिकली ये बन रही है 8x प्लस 72 माइनस 8x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 44 इंटू 3 दैट विल बी 132। तो उम्मीद है जी आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा, स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब आ जाते हैं जिसको सॉल्व करते हैं। 8x से 8x अगर कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, यानी 72 अगर 130 में से 2 में से माइनस करें तो ये बचता है जी 60, यानी ये आपके पास 15x है। अगर 15x की वैल्यू जो है वो 16 होती है, इफ 15x इज इक्वल टू 60 तो डेफिनेटली x की वैल्यू जो है यहां से 4 रहेगी। अब अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो तो आप x के अकॉर्डिंग वैल्यूज फर्स्ट और सेकंड नंबर के निकाल सकते हो, यानी 8 इंटू 4 दैट विल बी 32, यानी दो नंबर्स का सम जो है वो 72 है। पहला नंबर अगर 8x का मतलब है 8 इंटू 4 यानी 32 है, तो डेफिनेटली जो दूसरा नंबर रहेगा वो रहेगा जी आपका 40। लास्ट में हमसे पूछा गया है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर की अगर आप डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस यहां पे है जी आपके पास 8, यानी मेरा आंसर रहेगा जी डी ऑप्शन। तो चलिए जी उम्मीद है जी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 41, यानी ए और बी का एडिशन गिवन है 41। एज ऑफ ए 2 years हेंस इज इक्वल टू एज ऑफ सी 1 years ago, यानी ए की जो एज है 2 साल बाद सी की एज का 1 साल पहले के इक्वल है। तो मैं ये मान लेता हूं जी ए की एज ए है और बी की एज है जो है वो, और सी की एज जो है वो मान लेते हैं सी है। अब स्टेटमेंट में इक्वल कहा गया है कि ए की एज 2 years हेंस, यानी अगर ए की एज में मैं 2 साल इंक्रीज करूं तो वो आपका इक्वल बनता है सी की एज 1 साल पहले, यानी सी -1। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन रही है, यानी यहां से मैं कह सकता हूं जी a माइनस सी दैट इज इक्वल टू -3। तो चलिए जी एक इक्वेशन मेरे पास ये बन रही है। अब सेकंड केस में उसने ये मेरे को कहा है एंड एज ऑफ ए 4 years हेंस इज इक्वल टू एज ऑफ बी 1 year ago, यानी ए की जो एज है वो 4 years हेंस इक्वल है बी की एज 1 year ago। तो बी की प्रेजेंट एज में बी मान रहा हूं -1, तो ये आपके पास जो है वो इक्वल है। चलिए स्टेटमेंट एक बार वापस से देखते हैं जी। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 41 एंड एज ऑफ ए 2 years हेंस इज इक्वल टू एज ऑफ सी 1 year ago, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है। एज ऑफ ए 4 years हेंस इज इक्वल टू एज ऑफ बी 1 year ago। तो चलिए जी सेकेंड इक्वेशन बनी है, यानी अगर आप यहां से a माइनस बी कैलकुलेट करो तो 4 इधर जाके माइनस हो रहा जी दैट इज इक्वल टू -5, यानी a माइनस बी की जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी -5। और एक उसने मुझे दिया है सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 41, तो यहां से मैं a और b को अगर प्लस करूं तो रिजल्ट आता है जी 41। चलिए दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल वी कैन सिंप्लीफाई। अगर दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं तो यहां से आपके पास बनता है जी 2 टाइम्स ऑफ a दैट इज इक्वल टू 41 माइनस 5 दैट विल बी 36, यानी यहां से आपके पास a की वैल्यू निकल के आ रही है दैट विल बी 18।
यानी ए की जो प्रेजेंट एज है तो वो बेसिकली 18 साल गिवन है। अब ए की अगर प्रेजेंट एज गिवन है तो आप यहां से सी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि लास्ट में अगर सी से आपको डी को रिलेट करना है तो दोनों के रेशियो गिवन है। तो पहले सी निकाल लेते हैं जी। सी का मतलब है अगर मैं ए की एज को 18 पुट करता हूं, अगर मैं ए की एज को 18 पुट करता हूं तो 18 तो जाके प्लस हो रहा है, यानी सी की वैल्यू जो है वो 18 से 3 ज्यादा यानी कि 21 साल रहेगी। तो अगर आप सॉल्व करो तो नेगेटिव पॉजिटिव, सी की वैल्यू जो है वो 21 है। अब अगर मैं लास्ट स्टेप की बात करूं तो उसने मुझे कहा है सी की एज और डी की एज का रेशियो जो है वो आपके पास 3:, ए की एज और डी की एज का जो रेशियो है वो आपके पास 3:4 है। तो चलिए अब यहां से ए और डी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। चलिए अगर मैं कहूं कि ए की एज और डी की एज की अगर मैं बात करूं तो इसका रेशियो मेरे पास गिवन है जी 3:4। यानी अगर मेरे को पता है ए की एज जो है वो 18 साल है तो मैं इक्वेट कर सकता हूं जी 3 हिस्सों से, यानी 3 हिस्से की वैल्यू जो है अगर 18 है तो डेफिनेटली एक हिस्सा जो है वो आपके पास 6 रहेगा। एक हिस्सा अगर 6 है तो 4 हिस्से का मतलब है डी की प्रेजेंट एज जो है वो 24 साल है। अब लास्ट में हमसे ये पूछा गया है कि डिफरेंस बताना है सी की एज का और डी की एज का। तो सी की एज 21 ईयर्स, डी की एज 24 ईयर्स, तो दोनों के डिफरेंस की बात करें तो मेरा आंसर रहेगा जी 3 ईयर्स। तो उम्मीद है जी आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन काफी घुमा के पूछा गया था। चलिए जी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जी। मनु इन्वेस्टेड 13% ऑफ द मंथली सैलरी इन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड 12% ऑफ पीपीएफ, यानी टोटल वैल्यू का 13% और टोटल वैल्यू का 12%। इसका मतलब है टोटल वैल्यू मान लेते हैं जी 100% है। 100% में से पहला उसने एक्सपेंडिचर किया है 25% का, जो कि है जी पीपीएफ अकाउंट और आपका एफडी का। तो ये मान लेते हैं एफडी और पीपीएफ। चलिए सेकंड केस में कहते हैं जी 3/11, यानी अगर मैं कहूं 100 यूनिट्स में से 75 यूनिट्स उसने स्पेंड कर दिए, 25 यूनिट्स स्पेंड कर दिए, तो अब मेरे पास बचा है जी 75 यूनिट्स। यानी अब अगर मैं दूसरा खर्चा करूंगा तो मैंने 75 का करना है। अब सेकंड केस में कह रहे हैं जी 3/25 ऑफ द रिमेनिंग, यानी बचे 75 का 3/25। तो अब अगर मैं 3/25 करता हूं जी 75 का, अब अगर मैं 3/25 करता हूं 75 का, तो इसका मतलब है दूसरा खर्चा मैंने किया है 9% का, जो कि मैंने किस पे किया है, रिमेनिंग अमाउंट स्पेंट ऑन क्लॉथिंग। तो ये मैंने खर्च किया है जी क्लॉथिंग पे। यानी अगर 75 में से 9% आपने खर्च दिया तो अब आपके पास बचा है जी 66%, यानी आपकी जो इनिशियल इनकम थी वो 9% रिड्यूस हो गई है। चलिए जी थर्ड स्टेप पे आते हैं जी। अब उसने 3/11 स्पेंड किया है ऑन फूड, यानी अब अगर मैं 3/11 करूंगा तो वो करेंगे जी 66 का। तो 3/11 अगर 66 का करते हैं तो 11 से 6 टाइम्स इंटू 3, यानी तीसरा जो खर्चा मैंने किया है वो किया है जी 18% का। अब ये 18% हमने किया किसके ऊपर है, दैट इज ऑन स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो ये मैंने खर्चा किया है जी एजुकेशन का। यानी शुरुआत में 100 रुपए थे, पहला केस 25% का हुआ तो बचा 75, दूसरा खर्चा 9% का हुआ तो बचा 66, अब तीसरा खर्चा 18% का हुआ तो 66 में से 18 माइनस करो तो आएगा जी 46 + 2, दैट विल बी 48। लो जी एक बार यहां तक चेक करो जी, आपको कोई डाउट हो, दैट विल बी 48। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट केस के ऊपर। अब मुझे निकालना है 5/12 ऑफ द रिमेनिंग, यानी अब अगर मेरे पास 48 रुपए बचे हैं तो उसका 5/12 जो है वो मैंने खर्च किया है। तो 12 से एग्जैक्टली 4 टाइम्स, 4 × 5 विल बी 20। यानी नेक्स्ट जो मैंने खर्चा किया है वो किया है जी 20% का, और वो किया है आपने किसके ऊपर, 5/12 किया है जी एजुकेशन के ऊपर। अब लास्ट में अगर मैं बात करूं तो 20% अगर 48 में से खर्च दिया है तो अब मेरे पास बचा है बेसिकली 28%, यानी 100 रुपए में से सारे खर्चे करने के बाद मेरे पास लास्ट में बचा है जी 28%। अब 28% का उसने लास्ट में मुझे कहा है कि उसमें से उसने हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट स्पेंट ऑन इन्वेस्टेड ऑन स्कीम विच गिव्स हिज 10% सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years एंड गेट अमाउंट ऑफ 16,800। यानी 28% में से
14% जो है वो मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे 10% के हिसाब से 5 साल के लिए, जिससे मुझे 16,800 अमाउंट मिला है। तो मान लेते हैं जी अगर 14% यानी 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं, 14% मैंने इन्वेस्ट किया है, तो 100 रुपए में से 5 साल में 10% के हिसाब से यानी 50% मुझे इंटरेस्ट मिला। तो 14 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो उसके ऊपर 7 रुपए आपको जो है बेसिकली इंटरेस्ट मिला। तो ये आपके पास हो जाएगा जी 21। यानी अगर 14 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं तो 7 रुपए उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिला है, तो मेरा अमाउंट जो उस केस में बनेगा वो बनेगा जी 21 रुपीज। तो चाहे आप 21 से इक्वेट करो चाहे 150 से इक्वेट करो, तो 21 ज्यादा इजी है जी समझ पाना। तो ये मान लेते हैं जी 21% जो है वो मेरे पास अमाउंट की फॉर्म में मुझे मिला है। तो अगर 21% की वैल्यू जो है वो मेरे पास गिवन दी है 16,800, यानी ये मेरे पास गिवन है जी 16,800। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो ये रहेगा जी 8, यानी इसका मतलब है 1 यूनिट की जो वैल्यू है दैट विल बी ऑफ 800 रुपीज। लास्ट में हमें फाइंड आउट करना है जी फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एफडी एंड पीपीएफ। तो सबसे पहले यहां से टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 800 है तो इसका मतलब है 100 यूनिट की वैल्यू मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो मैं कह सकता हूं जी ये रहेगा आपके पास ये रहेगा जी आपके पास 80,000। तो 80,000 में लास्ट में मुझे निकालना है जी एफडी और पीपीएफ में कितना इन्वेस्ट किया था। तो मैंने उसके अंदर किया था जी टोटल 25%। तो मुझे बेसिकली 25% यानी 1/4 निकालना है 8,000 का। तो अगर आप इसको सॉल्व करो 80,000 का, तो ये आपके पास आ रहा है जी 20,000। तो मुझे उम्मीद है जी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका एग्जैक्ट है। चलिए जी इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट केस में कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड अ ट्राउजर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन शर्ट एंड टोटल डिस्काउंट ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर इज 30। फाइंड आउट करना है जी ट्राउजर के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया है। देखो जी यहां पे अगर हम बात करें तो हम सीधा एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। 40% यहां है, ओवरऑल 30% है, दूसरे के ऊपर डिस्काउंट बताना है कितना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। मान लेते हैं एक मेरे पास शर्ट है और एक मेरे पास ट्राउजर है। शर्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने उस पर डिस्काउंट लिया है 40% का। ट्राउजर के डिस्काउंट को हमें फाइंड आउट करना है। ओवरऑल डिस्काउंट की बात करें तो 30% डिस्काउंट मुझे मिला है। अब यहां से अगर मैं इनके रेशो की बात करूं तो ट्राउजर का और शर्ट का और ट्राउजर का जो रेशो है दैट विल बी 1:2। तो देखो जी बिना किसी कैलकुलेशन के ये बिल्कुल इजीली सॉल्व किया जा सकता है। 40% और 30% में अगर मैं बात करूं तो 40% ज्यादा है, यानी ये मेरे पास एक डियरर वैल्यू है। अगर हम एलिगेशन की बात करें तो डियरर वैल्यू है, तो इसका मतलब है मुझे चीपर वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसी को इक्वेट करते हुए चल रहा हूं। 40% माइनस 30% दैट विल बी 10%, यानी दो हिस्से की वैल्यू अगर 10% होती है तो एक हिस्से की वैल्यू 5% है, यानी डेफिनेटली यहां पे 5% होगा। अब क्योंकि यहां पे ये चीपर वैल्यू है तो ऐसी एक वैल्यू जिसको 30 में से माइनस किया गया और 5 बचा है, तो वो वैल्यू जो है वो 30 से 5 कम होगी, यानी कि 25% होगी। तो मैं ये कह सकता हूं जी अगर शर्ट का डिस्काउंट 40% है तो आपके ट्राउजर का जो डिस्काउंट है दैट विल बी 25%। तो उम्मीद है जी आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो चलिए जी नेक्स्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं जी इसी के साथ। ए सोल्ड अ पेन टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज, यानी ए का कुछ अमाउंट है वो हमें नहीं पता, उसने बी को कोई चीज बेची है 60 रुपए प्रॉफिट पे। चलिए जी बी ने इंक्रीज किया उसका मार्क प्राइस बाय 50%, देन सोल्ड किया उसको बाय सी एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। प्रॉफिट अर्न्ड बाय बी इज 10 रुपीज मोर देन ई, यानी ए का जितना भी प्रॉफिट था उससे 10 रुपए ज्यादा, यानी बी का जो प्रॉफिट होगा वो बेसिकली 70 रुपए का होगा। तो चलिए जी इक्वेशन बना लेते हैं जी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मान लेते हैं जी ए की कुछ वैल्यू है, मान लेते हैं जी ए का कुछ प्राइस है और उसके अंदर उसका जो प्रॉफिट है वो 60 रुपीज है। चाहे तो हम इसको ऐसे एज्यूम कर लेते हैं
कि ये टोटल वैल्यू जो है वो मान लेता हूं जी 100% है, यानी ए के लिए उसका कॉस्ट और उसके साथ 60 रुपए प्रॉफिट मिला के टोटल जो पार्ट है वो आपका 100 रुपए है। अब 100 रुपए वाली चीज को पहले केस में 50% बढ़ाया, तो इसका मतलब है जी 150 रुपीज में बेचा गया, 100 का 50%। दूसरे केस में उसी के ऊपर डिस्काउंट दिया गया है 25% का, यानी 25% डिस्काउंट करने का मतलब है अब मुझे जो 25% लेना है वो 150 का लेना है। तो 150 का अगर आप 25% लो तो ये आता है जी आपका 37.5, और अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो मेरी वैल्यू बनती है जी 112.5, यानी कुछ नहीं चल रहा, यहां पे प्योरली सक्सेसिव चल रहा है। 100 वाली चीज को 50% बढ़ाया गया है, फिर बढ़ी हुई चीज को फर्दर 37.5% के हिसाब से, यानी 25% के हिसाब से डिक्रीज किया गया है, तो वो रहेगा जी आपका 12.5। यानी इसका मतलब है कि लास्ट में जो बी ने कीमत दी है वो दी है उसकी 12.5 रुपए। अब यहां से ये चेक कर लेते हैं जी ए का और बी का जो डिफरेंस है वो बन रहा है जी 12.5 यूनिट्स का, और इस 12.5 यूनिट्स की वैल्यू जो है वो 10 से ज्यादा यानी कि 70 रुपए है। चेक करो जी एक बार, इक्वेशन आपको क्लियर है कि जो आपके पास बी की वैल्यू ए की वैल्यू से ज्यादा है वो 12.5 ज्यादा है, और उसी की वैल्यू जो प्रॉफिट है जो कि 10 रुपीज ज्यादा, तो 60 से 10 रुपीज ज्यादा, दैट विल बी 70 रुपीज। तो 12.5 को मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100/8 लिख रहा हूं, यानी 100/8 की वैल्यू अगर 70 होती है तो यहां से आप 100 यूनिट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। 7 × 8 विल बी 560, यानी 100 यूनिट का मतलब ये है कि जो ए के लिए उसका कॉस्ट था प्लस 60, उस टोटल को मैंने 100 यूनिट्स माना था। तो अगर लास्ट में मुझे ये बताना है कि ए की कॉस्ट प्राइस क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं जी 100% का मतलब है 560 है। अब 560 में से अगर ए का प्रॉफिट 60 रुपए का था तो इसका मतलब ए के लिए उसका कॉस्ट जो है वो 500 रुपए था। तो इस कंडीशन में मेरा आंसर रहेगा जी बी ऑप्शन, यानी ए का जो कॉस्ट प्राइस रहेगा दैट विल बी ऑफ 500 रुपीज। तो उम्मीद है जी आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए जी इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 1124.76 इन 3 साल, यानी इस केस में मुझे अमाउंट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर द फर्स्ट ईयर, 4% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 3% फॉर द थर्ड ईयर। देखो जी अगर मैं बात करूं इस केस में अमाउंट जो है वो 1124 है, चाहे तो हम इसको सॉल्व कर ले सकते हैं जी 100 मान के 3%, 5% और 4% इंक्रीज करके अमाउंट जो बनेगा इक्वेट कर सकते हैं। या इस केस में अगर मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करूं तो अगर अमाउंट मेरे पास इतना है तो डेफिनेटली प्रिंसिपल जो है वो इससे कम होगा, तो मैं ये कह सकता हूं जी सम ऑफ मनी, यानी अगर प्रिंसिपल निकालना है तो डेफिनेटली वो 1000 रुपीज होगा। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 1000 को अगर 5% बढ़ाएं, फिर बनी वैल्यू को 4%, फिर बनी वैल्यू 3% और इक्वेट करें तो आपका आंसर रहेगा। बट इस केस में जरूरत नहीं है, तो मेरा आंसर रहेगा जी सी ऑप्शन, दैट विल बी 1000। चलिए जी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी दिख रहा है। वन फिलिंग अ पाइप टेक्स 3 minutes more than filling the 2 pipes A and B together, यानी इसका मतलब ये है कि जो पहले वाला टैप है वो 3 मिनट ज्यादा लेता है पहले और दूसरे को मिला के। पहले को मान लेता हूं जी A और B है, यानी A और B के कंबाइंड टाइम से, मान लेता हूं जी कंबाइंड टाइम x आवर्स है, तो इससे 3 मिनट ज्यादा लेता है पहले वाला। पहले वाले का मतलब है जी A की बात ही कर रहा है, तो ये मान लेते हैं जी A है, यानी x + 3 आपके पास इसका टाइम रहेगा। 3 मिनट्स है तो मान लेता हूं जी x जो है वो मिनट्स में है। चलिए दूसरे केस की बात करते हैं। सेकेंड पाइप फिल टेक 21 1/3, ये करेक्शन करना जी 21 211/3 नहीं है, 21 1/3 है। तो अगर मैं दूसरे की बात करूं तो B वाला जो टैप है वो बेसिकली 21 1/3 मिनट्स मोर लेता है A और B से टुगेदर से। तो अगर मैं कहूं कि A और B का कंबाइंड टाइम जो है वो x आवर्स है, तो इसका जो टाइम है वो x से प्लस है जी 21 1/3। तो 21 1/3 को आप लिख सकते हो जी 64/3। चलिए जी यहां लिख देते हैं जी 64/3। चलिए जी पहले तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं जी, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। अगर A अकेला फिल करता है तो कंबाइंड टाइम से 3 मिनट ज्यादा लेता है, अगर B अकेला फिल करता है तो कंबाइंड टाइम से 21 1/3 टाइम जो है वो ज्यादा लेता है। अब लास्ट में हमसे ये पूछा गया है
व्हेन विल द सिस्टेन विल फॉल इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। यानी इन शॉर्ट मुझे ये फाइंड आउट करना है कि एक्स की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी। तो चलिए, अगर मैं कहूं टोटल टाइम मेरे पास गिवन नहीं है, तो एक तो तरीका ये है जी, इक्वेशन बना लेते हैं सिंपली फॉर्म में, यानी कंबाइंड टाइम की बात करें तो 1/x। अगर x आवर्स लेते हैं, x मिनट लेते हैं, तो कंबाइंड फॉर्म में 1/x काम जो है वो एक बारे में करते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, दिस इज 1/x + 3, a की वैल्यू प्लस, और अगर b की बात करें तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, 3x + 64, यानी 3 इज डिवाइड बाय 3x + 64। चलिए, मैं यूनिट वर्क के अकॉर्डिंग ही लेके चल रहा हूं। अब देखो, यहां से अगर आप इसको सॉल्व करो तो x कैलकुलेट करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टाइम ज्यादा लेगा। तो उससे बेटर तरीका है जी, ऑप्शन वाइज पुट कर लेते हैं। आप रैंडमली किसी भी नंबर को पुट कर लो। अगर मैं 8 पुट करके यहां चेक करता हूं तो ये आ रहा है जी 1/8, दैट इज इक्वल टू 8 + 3। 8 + 3 का मतलब है जी 11, प्लस रहेगा जी 3 टाइम्स 3 × 8 24, 24 + 64 दैट विल बी 88। तो यहां कुछ हिंट मिल रहा है जी, 88 और 11 का एलसीएम 88 ही आएगा, तो बन सकता है 1/8। यानी अगर मैं कहूं इसको सॉल्व करके 1/8 बना तो डेफिनेटली मेरा फर्स्ट आंसर रहेगा। तो चलिए जी, सॉल्व करते हैं जी। 11 और 88, तो ये मान लेता हूं जी एलसीएम 88 आ रहा है। 11 से 8 गुना प्लस 88 से 1 यानी 3, 8 और 3 का मतलब है जी 11। 11/88 का मतलब है कैंसिल आउट हो गया, 1/8 बन रहा है। अगर आपका लेफ्ट और राइट इक्वल है तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो 8 मिनट्स ही रहेगा। तो आप रैंडमली ट्राई कर सकते हो जी। 7 वाला वैल्यू यहां नहीं बननी थी, 64 में 7 3 गुना जोड़ के कुछ नहीं बनता, 16 के अंदर भी कुछ ऐसे अकॉर्डिंगली नहीं बन रहा, तो मैंने सीधा ही 8 की वैल्यू उठाई है। चलिए जी, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। इनकम ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशियो ऑफ 7, 9, 12 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 8, 9, 15। इफ A सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, यानी अपनी इनकम का 1/4 जो है वो सेव करता है। तो चलिए जी, यहां से मैं ये मान लेता हूं जी, A, B, C के अगर मैं इनकम की बात करूं तो ये मान लेते हैं जी A, B और C का इनकम की अगर मैं बात करूं तो 7, 9 और 12 है। 7, 9 और 12 है। इनकम को मान लेते हैं जी हिस्सों में x है। और अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर 8, 9 और 15 है। तो ये मान लेते हैं जी 8, 9 और 15 है। ये है आपके पास एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर की फॉर्मेट मान लेता हूं जी y है। अब उसने मुझे ये कहा है कि A ने सेव किया है 1/4 अपनी इनकम का। तो 1/4 अगर अपनी इनकम की बात करें तो A की सेविंग रहेगी 1/4 ऑफ हिज इनकम, दैट विल बी 7x। तो यहां से सबसे पहले तो मुझे x और y की जो रेशियो है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो आ जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग इनकम और एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए मैं A के अकॉर्डिंग ही चलता हूं। यानी अगर मैं A की बात करूं तो A का इनकम जो है वो 7x का है, माइनस A के एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो 8y है, और इज इक्वल टू, यानी इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर में माइनस करूं, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर में माइनस करूं तो यहां से आता है जी सेविंग्स, यानी 8y। यहां से आता है जी सेविंग्स जो आपके रहेगा 1/4 ऑफ 7x, यानी मैं कह सकता हूं जी 7/4 ऑफ x। चलिए एक बार इक्वेशन चेक करना। यहां से अगर आप x और y का रेशियो बना लेते हो तो वो आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो दे देगा। लास्ट में सेविंग्स निकालने के लिए मुझे इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके सेविंग्स की वैल्यू इक्वेट करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले यहां पे y का x का रेशियो निकाल लेते हैं। यानी अगर आप चेक करो तो 8 टाइम्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू 7x माइनस 7/4x। मैं नेगेटिव इंक्लूड कर रहा हूं उसमें। यानी अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये आपके पास बन रहा है जी 7 4 ज़ा 28, 28 माइनस 7 दैट विल बी 21 डिवाइड बाय 8 इंटू 4 विल बी 32। यानी इसका मतलब ये है कि इनकम का हिस्सा जो है वो 32 है और खर्चे का हिस्सा जो है वो 21 है। तो x और y का यहां से रेशियो जो है वो 32:21 आ रहा है। अब यहां से मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं जी। सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि अगर मुझे यहां से वैल्यूज निकालनी है तो करना किस तरह से है। चलिए पहले तो इसको यहां से वैल्यूज निकाल लेते हैं जी। मेरे पास एक्सपेंडिचर गिवन है 8, 9 और 15। तो चलिए ये मान लेता हूं जी 8, 9 एंड 15।
तो चलिए जी, सबसे पहले मैं ए के अकॉर्डिंग चलता हूँ जी। मेरे पास ए की वैल्यूज जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, इन दोनों में से अगर आया तो क्लैश हो जाएगा, अदरवाइज ए के अकॉर्डिंग आंसर आ सकता है। तो चलिए जी, अगर मैं ए की बात करूँ तो एक्स की वैल्यू 32 है, तो ए का एक्सपेंडिचर या इनकम की अगर मैं बात करूँ तो इनकम के हिस्से 7 हैं, और अगर एक्स की मैं बात करूँ तो एक्स मेरे पास 32 है, तो 7 गुना 32 माइनस खर्चे की बात करें तो 8 वाई का मतलब है जी वाई की वैल्यू मेरे पास 21 है। तो मैं ए की इनकम में से ए का खर्चा माइनस कर रहा हूं सो दैट मेरे पास ए का सेविंग्स रहे। तो अगर आप इसको सॉल्व करो 7 इंटू 2 14, 7 3 21, यानी 224 माइनस रहेगा जी 8 2 16, 168, यानी 168 में से अगर मैं 24 माइनस करूं, अगर 168 में से मैं 24, 32 और 24, तो ये आपके पास आ रहा है जी 56, यानी इसका मतलब है कि ए का जो सेविंग है वो 56 वाला पार्ट है। तो या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है या फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो दोनों के अंदर बी का सेविंग्स सेम है जी, कोई बेनिफिट नहीं है निकालने का। सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए जी, अगर मैं सी को सॉल्व करूं तो यहां इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। सी की अगर मैं इनकम की बात करूं तो 12 गुना इनकम मेरे पास था जी बेसिकली 32 माइनस, और अगर मैं सी के एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 15 गुना यानी 15 टाइम्स रहेगा जी खर्चा मेरे पास है 21। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनता है जी 320 प्लस 64 यानी 384 माइनस करेंगे जी 15 को 20 गुना किया तो आएगा 315, यानी 384 में से अगर मैं 315 जो है वो माइनस करूंगा तो मेरा आंसर डेफिनेटली आ रहा है जी 69। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है जी आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 कैंडल्स हैं जो कि सेम हाइट की हैं, आर लाइटेड सेम टाइम, द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 5 आवर्स। पहले वाली पूरी की पूरी 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है, सेकेंड वाली 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। Assuming that they burn at constant rates, in how many times their height will in the ratio of 3:2? क्वेश्चन जो बेसिकली है वो टाइम एंड वर्क का है, पूछा गया है किस तरीके से, तो ये समझते हैं। मान लेते हैं जी 2 कैंडल्स हैं जिनकी उसने कहा है सेम हाइट है। तो ये मान लेता हूं मेरे पास 2 कैंडल्स हैं जिनकी सेम हाइट है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं जी, दोनों कैंडल्स की हाइट को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा जो कि सेम है। तो पहले वाली जो है वो 5 आवर्स में बर्न होती है पूरी, सेकेंड वाली जो है वो 4 आवर्स में बर्न होती है। तो मैं काम करता हूं जी, टोटल कैंडल की हाइट्स को 5 और 4 का एलसीएम यानी 20 मान लेता हूं कि 20 यूनिट लेंथ इसकी है, 20 यूनिट लेंथ इसकी है। यानी अगर आपके पास टोटल काम जो है वो 20 यूनिट करने का है तो पहले वाला कैंडल जो है वो 5 आवर्स में पूरा बर्न होता है और सेकेंड वाला कैंडल जो है वो 4 आवर्स में पूरा बर्न होता है। तो यहां से मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। फर्स्ट वाला जो है वो हर 4 यूनिट हर मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। सेकंड वाला जो है 5 यूनिट हर 1 मिनट में बर्न हो जाएगा। चलिए जी लास्ट स्टेप लेते हैं जी। मान लेते हैं ये दोनों के दोनों इतनी हाइट पे या इतनी हाइट पे टी टाइम में पहुंचे, यानी अगर 1 घंटे में ये 4 यूनिट कम होता है तो कितना टाइम लगेगा कि इसने टोटल हाइट को कम करना है। तो मान लेते हैं जी इक्वेशन क्या कहती है कि मान लेते हैं टोटल लेंथ जो है वो 20 यूनिट की है माइनस, पहले वाले केस की बात करूं तो फर्स्ट वाली जो है 1 घंटे में 4 यूनिट कम होती है। तो मान लेते हैं जी 1 घंटे में ये 4 यूनिट कम हुई है, इसने कुछ टाइम लिया है, मान लेते हैं जी टी टाइम लिया है। और दूसरे वाले की बात करें तो उसकी भी लेंथ 20 यानी सेम है माइनस, उसने बेसिकली 5 यूनिट जो है वो हर 1 आवर में कम होती है। 1 घंटे में 5 यूनिट कम होती है तो उसने कुछ टाइम लिया है, मान लेते हैं जी टी टाइम लिया है, और इनका जो रेशो है वो 3:2 बना है। चलिए जी एक बार इक्वेशन चेक करो जी। इक्वेशन समझना इज अंडरस्टैंडिंग पार्ट, बहुत जरूरी था हमारे लिए। वैसे इसको क्वेश्चन को और थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है बट ये चीज जरूरी थी। तो चलिए जी सॉल्व करते हैं जी। 2 into 4 दैट विल बी 40 माइनस 8 टाइम्स ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 3 into 2 60 माइनस 5 into 3 15 टाइम्स ऑफ टी। तो अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 40 माइनस 60 इज 20 एंड 15 माइनस 8 2 और 15 7, यानी 7 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू 20। तो यहां से अगर मैं टी कैलकुलेट करूं तो ये रहेगा जी 20/7। तो उम्मीद है जी आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल तरीका है, टी टाइम का मतलब है
20/7 आवर्स के बाद इन दोनों का रेशियो जो है हाइट का 3:2 हो जाएगा। तो चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। ए और बी इन्वेस्टेड 20 और 25,000 रुपए 1 साल के और 8 मंथ के लिए। ए बीइंग अ वर्किंग पार्टनर 25/3% प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट का 25/3% ऑफ टोटल प्रॉफिट 60,000, एंड आफ्टर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। वेरी इजी स्टेटमेंट। लो जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं ए और बी के रेशियो की बात करो प्रॉफिट का, तो 20,000 25,000 4:5 आ रहा है जी इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं जी टाइम से, यानी पहले वाले का 1 साल यानी 12 महीने, दूसरे वाले के 8 महीने। तो यहां से अगर आप चेक करो तो यहां से इन्वेस्टमेंट का रेशियो आता है जी आपके पास 12:10, और मैं कह सकता हूं जी 6:5, यानी ए का इन्वेस्टमेंट 6 और बी का इन्वेस्टमेंट 5 है। अब इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो बेसिकली रेशियो बनता है प्रॉफिट्स का, तो मैंने ये इनके प्रॉफिट्स के रेशियो निकाले। अब स्टेटमेंट में उसने ये कहा है कि अगर टोटल प्रॉफिट यानी 60,000 का 25/3 जो है वो ए को मिला है एज वर्किंग पार्टनर, तो ए अगर वर्किंग पार्टनर है तो उसको मिला है जी 25/3%, 25/3% किसका, टोटल वैल्यू का। तो टोटल वैल्यू है मेरे पास कितनी, 60,000। तो 60,000 का अगर आप 25/300 कैलकुलेट करते हो तो ये आता है जी आपके पास 5,000 रुपीज। यानी इसका मतलब है ए हु इज अ वर्किंग पार्टनर उसको 55,000 जो है एज वर्किंग पार्टनर उसको मिला है। तो टोटल प्रॉफिट यानी 60,000 में से अगर 5,000 इसको मिला है तो बचा जो प्रॉफिट है वो 55,000 होगा, और इस 55,000 को अगर मैं ए और बी में डिवाइड करता हूं तो मुझे बी का शेयर निकालना है। तो बी के शेयर का मतलब है जी बी के हिस्से, कितने हिस्सों में से 11, तो मुझे 5/11 करना है जी 55,000 का। तो आप सॉल्व करो तो आंसर आता है जी 25,000। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा जी 25,000 रुपए, यानी कि अगर आप चेक करो तो ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए जी, उम्मीद है जी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। राम एंड श्याम ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच इज 60 किलोमीटर्स अपार्ट, ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस speed, Ram takes 1 hour more than Sham to reach a point B। चलिए जी, मान लेते हैं जी राम और श्याम की कुछ स्पीड्स हैं, दोनों के बीच दोनों के दोनों डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर यानी कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड, राम टेक्स 1 hour मोर देन श्याम टू पॉइंट बी, यानी इसका मतलब है 60 किलोमीटर्स को अगर राम ट्रैवल करता है तो राम की मान लेता हूं जी स्पीड x है, और 60 किलोमीटर्स को अगर शाम ट्रैवल करता है, शाम की स्पीड मान लेते हैं जी y है। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड राम टेक्स 1 hour मोर, यानी राम का टाइम शाम के टाइम से 1 घंटा ज्यादा है, यानी दोनों के टाइम का डिफरेंस जो है वो 1 hour का है। चलिए सेकंड केस में चलते हैं जी। अगर राम अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो वो 30 मिनट कम लेता है शाम से। अब राम का टाइम कम है, यानी अगर शाम जो है वो 60/y डिस्टेंस ट्रैवल करता है और राम जो है वो 60 डिस्टेंस को डबल स्पीड से ट्रैवल करता है यानी 2x स्पीड से करता है, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस आधा घंटा, आधे घंटे का मतलब है जी 30 मिनट यानी हाफ एन आवर है। तो उम्मीद है जी आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। लास्ट में हमें फाइंड आउट करना है जी राम की जो ड्राइविंग स्पीड है ए टू बी से वो कितनी है, यानी राम की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो चलिए जी, अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो यहां से कोशिश करो x निकालने की। तो अगर आप चेक करो तो दोनों का ये वाला पार्ट इक्वल है जी, आप इक्वेट कर सकते हो। यानी फर्स्ट केस में कह सकते हैं 60, चलिए इक्वेशन बना लेते हैं जी। फर्स्ट वाले केस की बात करें तो टाइमिंग है जी 60 डिवाइड बाय x फर्स्ट केस में -1 दैट इज इक्वल टू 60/y, और सेकंड केस से बात करें तो 60/y रहेगा जी हाफ, इधर आके ये प्लस हो जाएगा तो ये इक्वल रहेगा जी 60 इज डिवाइड बाय 2x दैट इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो चलिए एक बार इक्वेशन चेक करो जी, दोनों में मैंने y वाले पार्ट को कांस्टेंट कर दिया, छोड़ दिया। x की वैल्यू जो है मैं फाइंड आउट करनी है क्योंकि x जो है वही आपके राम की स्पीड है। तो यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है जी 60 इज डिवाइड बाय x दैट इज इक्वल टू 60 इज डिवाइड बाय 2x, x वाले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं।
चलिए जी, इधर आके माइनस हो जाएगा जी, -2x दैट इज इक्वल टू 1 उधर जाके प्लस हो रहा है, तो 1 + ½ मीन्स 1.5 यानी 3/2। तो अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो एलसीएम आता है जी 2x का, 60 में कॉमन ले रहा हूं तो ये 2 - 1 यानी कि 1, तो ऊपर बचेगा जी 60 दैट इज इक्वल टू 3/2। और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 से 2 कैंसिल, यानी आपका आंसर जो रहेगा दैट इज इक्वल टू 60 इज डिवाइड बाय 3। मैं इस क्वेश्चन में सीधा सीधा जो है वो ये चीज भी बना सकता था, बट इससे बेटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग यहां बन रही है क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या था। तो चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। अमित इंटेंड टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी अमित ने एक यूनिफॉर्म स्पीड पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बट आफ्टर 1 आवर यानी 1 घंटा चलने के बाद आफ्टर 1 आवर ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 25%। उसने अपनी स्पीड जो पहले थी उसको 25% इंक्रीज कर दिया। चलिए जी, एज अ रिजल्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टाइम हैड ओरिजिनली प्लान फॉर द जर्नी ही कुड नाउ कवर एज मच डिस्टेंस एज इनिशियली थॉट he would be able to cover. After Amit increased his speed, if that decided to terminate his journey after covering the distance he initially intended cover, not cover the extra distance as a given, what is the total time of the journey? चलिए जी, सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, कुछ टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, या अगर सिंपली इसको इक्वेशन बनाना चाहें तो अमित ने फर्स्ट केस में मान लेते हैं जी 25% की अगर मैं बात करूं तो 25% का मतलब होता है 1/4 है, यानी अगर उसकी इनिशियल स्पीड 4 है तो 1 घंटे के बाद उसने इंक्रीज की है और स्पीड 5 की स्पीड से वो चला है। तो इस केस में बेसिकली मैं डिस्टेंस वाले पार्ट को कांस्टेंट ले रहा हूं, यानी अगर सपोज करो कि मेरे पास मैं 4 की स्पीड से, यानी अमित 4 की स्पीड से चलता है, तो मान लेते हैं जिसने t टाइम लिया। अब उस केस में इस पूरे डिस्टेंस को उसने ट्रैवल किया है 5 की स्पीड से और पहले के टाइम से 1 घंटा कम लिया है, तो यहां टाइम हो जाएगा जी आपका t-1। सबसे पहले यहां से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, t आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 4 टाइम्स ऑफ t जो है दैट इज इक्वल टू 5t - 5, और अगर मैं यहां से t कैलकुलेट करूं तो t की वैल्यू यहां से आ रही है 5 आवर्स, यानी हम ये मान सकते हैं जी टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हुआ है आपका 5 घंटे में। अब सबसे पहले अगर आप डिस्टेंस अज्यूम करना चाहते हो तो मान लेते हैं जी 4 यूनिट की मेरी स्पीड है और मैंने टोटल टाइम जो है वो 5 घंटे लिया है, तो ये मान लेते हैं जी टोटल डिस्टेंस, ग्राफिकल फॉर्म में समझ लेते हैं जी। टोटल डिस्टेंस जो है वो 20 यूनिट का है, टोटल डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं जी 20 यूनिट का है। अब स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है कि अमित पहले चला है जी 4 यूनिट की स्पीड से, तो ये मान लेते हैं जी अगर मैं 1 घंटे तक 4 यूनिट की स्पीड से चलूंगा तो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल होगा 4 यूनिट्स का, यानी 4 यूनिट्स का डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका है, तो अब भी मुझे 16 यूनिट्स का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना है। अब ये 16 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है पहले की स्पीड को 25% बढ़ा के, यानी कि 5 की स्पीड से। तो यहां से टाइम देख लेते हैं जी कितना लगेगा, यानी अगर मैं कहूं कि फर्स्ट 4 यूनिट ट्रैवल किया है जी 1 घंटा, तो यहां लगा, उसके बाद 16 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5 की स्पीड से, तो 5 3 = 15 और 1/5, यानी 3 घंटे और 1/5 ऑफ अ 4th आवर, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी 12, यानी 3 घंटे ये है, 1 घंटा ये है, तो ये रहेगा जी 4 घंटे 12 मिनट। तो अगर मैं कहूं कि टोटल टाइम उसने ट्रैवल किया है जी 4 घंटे 12 मिनट के अंदर, जो हमारा टोटल डिस्टेंस 20 यूनिट का ट्रैवल हुआ। तो चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 15 एंड 18। सबसे पहले तो अगर मैं कहूं कि ऐसा एक नंबर जो इन नंबर से डिवाइड हो तो वो इन नंबर्स का मल्टीपल होगा, और अगर वो बात कर रहा है लीस्ट नंबर की, तो लीस्ट नंबर जो इन नंबर्स का मल्टीपल होगा वो रहेगा जी एलसीएम। यानी अगर मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन नंबर से डिवाइड हो और छोटे से छोटा नंबर हो, तो इन सभी का एलसीएम ले रहा हूं जी, 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम 90 रहेगा। अब यहां से देखो बेसिकली हमें करना क्या है, चलिए जी, यहां से मुझे करना क्या है, मान लेते हैं जी मुझे एक ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 90 का कोई ना कोई मल्टीपल हो
और 7 से पूरी तरह डिवाइड हो, यानी लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 चाहिए जो इनसे डिवाइड होके लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4, यानी 7 का मल्टीपल होगा और इन सभी से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर देगा। अब अगर मैं कहूं इन सबको डिवाइड करके इन नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर 90 है, तो 90 को अगर मैं 4 इंक्रीज कर देता हूं तो किसी भी नंबर से अगर आप 90 को डिवाइड करोगे तो पूरी तरह डिवाइड होगा। 4 रिमाइंडर चाहिए तो मैंने 4 उसको इंक्रीज कर दिया। अब ये चेक करना है जी ये नंबर 7 का मल्टीपल है या नहीं, तो आप चेक करो तो 94 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता। तो यहां से हम एक काम करते हैं जी, 90 के साथ मान लेता हूं जी k है, यानी 90 इंटू k प्लस 4। अब इस k की वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, ऐसा एक नंबर एज्यूम करना है जो 7 का मल्टीपल हो, 7 से पूरी तरह डिवाइड हो। तो चलिए जी, अगर k की वैल्यू 1 होती है तो 94, अगर k की वैल्यू 2 होती है तो 180 प्लस 4 184, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर k की वैल्यू 3 होती है तो 270 प्लस 4 274, 7 से डिवाइड नहीं होता। बट अगर k की वैल्यू 4 होती है तो ये बनता है जी आपका 90 इंटू 4, 9 4 जा 36 और प्लस 4 का मतलब है जी 364। चलिए जी, 964 को अगर हम डिवाइड करते हैं जी 7 से, तो आप चेक करो तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो मेरा आंसर रहेगा जी 964 एक ऐसा नंबर है जो कि इन 3 वैल्यू से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर देगा और 7 का मल्टीपल जो है वो भी 7 के साथ है। तो चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HCF निकालना है जी 1.75, 5.6 और 7 का। HCF कैलकुलेट करने का एक बिल्कुल बेसिक सा रूल है कि सबसे पहले तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको हमें लाइक करना है। लाइक का मतलब है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको हमें इक्वल करना है। तो मैं पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट सेम कर रहा हूं जी। मैं लिख सकता हूं जी 1.75, सेकंड में लिख सकते हैं जी 5.60 और थर्ड में लिख सकते हैं जी 7.0। अब इनको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं जी। 175 इज डिवाइड बाय 100, दूसरा है जी 560 इज डिवाइड बाय 100 और थर्ड रहेगा जी 700 इज डिवाइड बाय 100। अब रूल बेसिकली क्या कहते हैं, अगर एक फ्रैक्शनल टर्म में आपको HCF लेना है तो ऊपर वाले टर्म्स का हम लेते हैं जी HCF और नीचे वाले टर्म्स का हम लेते हैं LCM। तो चलिए जी, सबसे पहले तो अगर मैं HCF की बात करूं तो आप चेक करो 175, 560 और 700 तीनों का HCF आ रहा है जी 35 और डिनोमिनेटर्स की अगर मैं LCM की बात करूं तो 100 जो है वो LCM आ रहा है, तो डिवाइड रहेगा जी आपका 100 से, यानी अगर आप सिंप्लीफाई करो तो बनता है जी 0.35 जो हमारा आंसर रहेगा। तो मुझे उम्मीद है जी आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहीं तक थे जी आपके सारे क्वेश्चंस। उम्मीद हाय है कि एवरीवन, आपके question वेलकम clear टू होंगे। ज्ञानम स्टूडेंट्स। Thanks, तो आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉक नंबर 37 का जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, बोले रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, राइट। एक पैराग्राफ है, तो पहले हमें इसको पढ़ना है। जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में भी, पिछले मॉक्स में भी आपको बताया कि पैसेज को पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस भी रीड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द फैट ब्राउन डॉट इन पैराग्राफ 1 रेफर्स टू। तो एक हमें कीवर्ड यहां पे ढूंढना है, फैट ब्राउन डॉट। तो इसका याद रखना है कि कहां पे ये लाइन आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, द राइटर्स रिस्पॉन्स टू द वेट्रेस रिएक्शन वाज वन ऑफ। क्या था वेट्रेस रिएक्शन, क्या था, ये भी हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एट द एंड ऑफ द इंसिडेंट द कॉकरोच वाज, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, अ लोकल इटरी इन पैराग्राफ 1 रेफर, इसका मीनिंग बताना है। इटरी किसको रेफर कर रहा है, द वर्ड क्रिएचर, और क्रिएचर फ्रेज में मतलब ऑर्डिनरी क्रिएचर इन द फर्स्ट पैराग्राफ रेफर्स टू व्हाट। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं 4-5। अब अगर पैसेज पे जाते हैं तो पैसेज में क्या बोल रहा है, इनसाइड अ लोकल इटरी ऑन अ रिसेंट नाइट आई नोटिस्ड अ फैट ब्राउन। देखो पहला ही क्वेश्चन था जी, I noticed a fat brown dot walking along the counter top as it ducked in and around the napkin holder hid in a crack near the menu rack, then made a dash for a glass of ice water. It became clear that this was no ordinary creature. मतलब ये तो बात समझ आ रही है कि क्रिएचर की बात कर रहा है, this was a cockroach। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे मिल गया कि वो जो क्या था, एक कॉकरोच था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहां पे बोल रहे द फैट
ब्राउन डॉट इन पैराग्राफ 1 रेफर्स टू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, बग था, वेटर था, कॉकरोच था, तो साफ साफ वहां पे क्लियर मेंशन्ड है आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द राइटर्स रिस्पॉन्स टू द वेटरस रिएक्शन वाज वन ऑफ। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा पैसेज, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है द मोस्ट एंड्योरिंग ऑफ ऑल मैनकाइंड्स एसोसिएट्स, ऑल्दो माय एपेटाइट वाज गॉन, द वेटरेस वाजंट इवन एम्बैरेस्ड, but she did become frustrated when she tried to kill it. With a roll of newspaper in hand, she took a mighty sweat. Then comes the cockroach walking out of the newspaper roll, little stunned but apparently, मतलब clearly होता है, as thirsty as ever it made its way back to the bar. राइट, तो ये कुछ बता रहा है यहाँ पे। तो वेटरेस का जो रिएक्शन था वो आपको देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्या डेड था, अनकॉन्शियस था। अच्छा, ये तो अगला क्वेश्चन आ गया, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ये द राइटर्स रिस्पॉन्स टू द वेटरस रिएक्शन वाज वन ऑफ, एंगर था, सरप्राइज था, फ्रस्ट्रेशन था, तो ये था बेसिकली सरप्राइज, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, एट द एंड ऑफ द इंसिडेंट द कॉकरोच वाज डेड, अनकॉन्शियस, अलाइव, या फिर आपका एलिमिनेटेड। तो इसका आंसर बनेगा आपका डी। Question number next, a local eatery in paragraph 1 refers to a restaurant, a hotel, a canteen or a kitchen, ठीक है। तो ऑब्वियस है वो रेस्टोरेंट की बात कर रहा था स्टार्टिंग में, तो इसका आंसर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वर्ड क्रिएचर इन द फ्रेज, तो क्रिएचर का जो मीनिंग बनेगा यहाँ पे, तो ऑब्वियस है वो रेंगता हुआ जा रहा था, तो वो क्या था बेसिकली, एक रेप्टाइल तो नहीं था, एक एलियन भी नहीं था, ऑर्गेनिज्म भी नहीं था, इसका आंसर बनेगा एन इंसेक्ट, राइट। नेक्स्ट आगे देखिए, अब यहां पे आपको देना है ऑपोजिट इन मीनिंग, एज द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड, अ कैरेक्टर विदाउट अ ब्लेमिश इज अ वर्च्यू ऑफ अ लीडर, राइट। तो अ कैरेक्टर विदाउट अ ब्लेमिश, ब्लेमिश एक तरह से डॉट होता है, दाग होता है, धब्बा होता है, बेसिकली इज अ वर्च्यू ऑफ अ लीडर, राइट। मतलब जब किसी नेता के ऊपर कोई दाग नहीं होता, धब्बा नहीं होता, तो क्या होता है, एक तरह से उसका गुण होता है, ठीक है। तो ब्लॉट आएगा, एडोरमेंट आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, या इसका आंसर जो है आपका एनहांसमेंट आएगा। सो व्हाट कुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो ये ब्लैमिश मतलब विदाउट आ गया, तो इसका आंसर होगा आपका ब्लॉट। नेक्स्ट, रियूनियन वाज ओवरवेलमिंग एज ही रिटर्न्ड होम आफ्टर लॉन्ग टाइम, रियूनियन वाज ओवरवेलमिंग, ठीक है। ओवरवेलमिंग का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स इमोशनल, तो इमोशनल थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रियूनियन, रियूनियन होता है ना, जैसे फ्रेंड्स मिलते हैं तो रियूनियन होता है, इकट्ठे टुगेदर मिलते हैं। वाज ओवरवेलमिंग एज ही रिटर्न्ड होम आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो ऑब्वियस है ये मिलना हो गया, तो फिर इसका आंसर बनेगा हमारा पार्टिंग। पार्टिंग होता है सेपरेशन, जुदा होना, क्योंकि ऑपोजिट दे रहे हैं हम, राइट। नेक्स्ट, माय बुक इज सुपीरियर देन योर्स ऑल्दो इट हैज कॉस्टम मच लेस, ये थोड़ा ना यहाँ मिस्टेक है एक्चुअली, यहाँ स्पेस होना चाहिए, इट हैज कॉस्ट मी, इट हैज कॉस्ट, कॉस्ट की थर्ड फॉर्म कॉस्ट ही होती है, तो यहाँ पे ना छोटा सा स्पेस होना चाहिए, तो कॉस्ट मी होगा यहाँ पे, राइट। तो आंसर है सुपीरियर के साथ दैन नहीं आता स्टूडेंट, तो सुपीरियर के साथ दैन नहीं आएगा, तो हमारा आंसर बनेगा ये सेकंड। सुपीरियर के साथ क्या लगता है जी, टू। एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा होगा आपने कि सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू होता है। इफ ऑल ऑफ यू क्वारल अमंग योरसेल्फ, राइट, इफ ऑल ऑफ यू यू, अब ये जो यू वर्ड होता है, यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ भी हो जाता है, यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ भी हो जाता है, राइट, दोनों ही होते हैं। तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स आना चाहिए, क्योंकि यू हम यहाँ पे एक को नहीं बोल रहे, होता तो योर सेल्फ भी है, बट क्योंकि यहाँ पे हम पूरे सबको रेफर कर रहे हैं, तो योर सेल्फ्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या रहा है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इंप्रूवमेंट, नो सूनर हैज शी अग्रीड, तो क्या होता है, ये जो नो सूनर वर्ड होते हैं, नो सूनर है, राइट, और एक आपका क्या है, हार्डली, ठीक है। इन दो शब्दों के साथ हमेशा जो है अप्लाई होता है इन्वर्जन, और इन्वर्जन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स इंट्रोगेशन, द स्टेटमेंट को आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में लेके जाना पड़ता है, और टेंस इसके साथ लगता है पास्ट, राइट। देन शी स्टार्टेड, स्टार्टेड आ रहा है तो पास्ट है, प्रेजेंट में तो हम जा ही नहीं सकते, तो नो सूनर हैड शी अग्रीड हो गया, इसका आंसर बी होगा, राइट। नेक्स्ट, द पुलिस बुक्ड अ केस अगेंस्ट द कार ड्राइवर फॉर रॉन्ग पार्किंग,
तो पुलिस जो है बुक नहीं करती केस को, फाइल्ड करती है, राइट। द पुलिस फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कार ड्राइवर, तो फाइल्ड के साथ यहां पे इसको रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपको देखना है यहां पे अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन बनाना है PQRS का। 4 स्टेटमेंट्स, पहली स्टेटमेंट गिवन है, खिजर हैड बीन अ वेरी पायस, पायस होता है बेसिकली होली, पवित्र, एंड वाइज ओल्ड मैन, राइट। तो इसके बाद आपका आंसर क्या बन सकता है, यहां पे क्या हो सकता है इसका अरेंजमेंट, राइट, आपको चेक करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो इसके बाद क्या आएगा, क्या इसका नाम रिपीट होगा, नहीं, नाउन तो नहीं आएगा, इसको प्रनाउन रिप्लेस करेगा। प्रनाउन या तो आर में है तो एस में है, राइट। तो ही वुड लिव अंटिल द डे ऑफ जजमेंट, ही हैड ड्रंक नेक्टर द वाटर ऑफ एटर्नल लाइफ, एस से स्टार्ट हो गए, प्रनाउन से ही रिप्लेस होगा, उसका नाम तो रिपीट नहीं होगा, नाउन दोबारा नहीं आएगा। तो ही हैड ड्रंक नेक्टर द वाटर ऑफ एटर्नल लाइफ, एस से स्टार्ट होगा। अब एस से देखिए हम, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन, आई थिंक इसका आंसर बनेगा हमारा बी। तो देख लेते हैं आगे, एस के बाद आर, आर बोल रहा है ही वुड लिव अंटिल द डे ऑफ जजमेंट। क्यों, क्यों में इन पर्सिया whoever had any problem would pray to him for help, और फिर पी में आ जाएगा हमारा Khizr would then appear and comfort that person. The king of Persia also desired to see the great Khizr. Right? तो ये बनेगा राइट, यही आंसर सुटेबल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, the system of sati prevailed among upper caste Hindus in the 19th century. आपको पता है सती प्रथा जो थी, जिसका अंत जो है राजा राम मोहन रॉय ने किया था, राइट, फर्स्ट इंडियन रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने इस प्रथा का अंत किया था। तो इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या आएगा, the system of sati prevailed among upper caste Hindus in the 19th century. However, कंजंक्शन आ गया, ये नहीं आएगा इसके बाद, between preposition आ रही है, ये भी नहीं आएगा इसके बाद, राइट। ये आ सकता है आर, आर वाली ऑप्शन आ सकती है, आर, द ब्रिटिश डिड नॉट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस, क्योंकि देखो ना यहाँ पे एक प्रैक्टिस वर्ड आ रहा है, अपर कास्ट हिंदूज, सती प्रथा एक प्रैक्टिस थी, तो आर वाला जो सेंटेंस बनता है इसमें वो इसका राइट होना चाहिए, राइट। द ब्रिटिश डिडंट टेक एनी एक्शन, लीगल एक्शन, कानूनी कोई एक्शन नहीं लिया, तो आर से हमने एस देख लेते हैं, एस आ गया, दे फियर्ड अ बैकलैश फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स, फिर पी आ जाएगा, पी के में आ गया हाउएवर रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय लॉन्च्ड पावरफुल एंटी सती कैंपेन, और क्यू में आ जाएगा हमारा बिटवीन 1815 एंड 1818 इन बंगाल अलोन 800 वुमेन बिकेम सतीज। सतीज आप समझते हो ना, जब किसी घरवाले की मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस औरत को भी जिंदा मतलब चिता में जला दिया जाता था गांव वालों के द्वारा, तो उस प्रथा का अंत किया था इन्होंने। तो आंसर ये बनेगा जी हमारा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो वॉक फास्ट लेस्ट, ये पंजाब दे पेपर च पूछा जाता है जी, लेस्ट दा जोड़ा हमेशा मॉडल शुड हुंदा है, लेस्ट दा मतलब हुंदा किथे इदा ना हो, मेहनत करो किथे इदा ना हो तुसी फेल हो जाओ, सो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, राइट। नेक्स्ट देख लो, वी डैश सर्व आवर कंट्री नॉट सो फोर्सफुल, नॉट सो फोर्सफुल हो रहा है तो मतलब मस्त तो आना नहीं है, मॉडल आएगा यहाँ पे, ठीक है, वी डैश सर्व आवर कंट्री, तो क्या ये सजेशन है या ये बेसिकली एक मॉरल ड्यूटी है, तो आई थिंक ये है हमारी मॉरल ड्यूटी, इट इज द मॉरल ड्यूटी कि हमें अपनी कंट्री की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो राइट आंसर बनेगा हम इसमें ऑट टू, इट शुड बी ऑट टू, क्योंकि मोरालिटी कुछ और होती है, मॉरल ड्यूटी कुछ और होती है, सजेशन कुछ और होती है, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इसमें कोई सुझाव नहीं है, इसमें मोरालिटी है, राइट। तो राइट आंसर बनना चाहिए यहाँ पे ऑट टू होना चाहिए कि हमें अपनी कंट्री की सेवा करनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये सभी का जो है क्या है, बेसिकली ड्यूटी है ये, तो ड्यूटी में और सजेशन में फर्क होता है, साफ साफ लिखो, फोर्स इसमें नहीं बता रहा तो मस्त लगाने का तो कोई चांस इसमें नहीं है, तो आंसर होगा हमारा ऑट टू। जैसे वी ऑट टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू ओबे आवर टीचर्स, एल्डर्स, तो these are the moral duties basically। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर स्टूडेंट्स, सी यू।